Okay, so once again, good evening, everyone. So today I'm going to start this chapter, halogen containing compounds, या फिर इसी को बोलते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन. ठीक है. Halogen containing compounds हाइलोजन कंटेनिंग कंपाउंड. ठीक है. या फिर इसी चैप्टर को हम कहेंगे यहाँ पे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन, क्योंकि ये पढ़ेंगे इसमें हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन. इसकी बात करेंगे हम लोग. ठीक है. तो सबसे पहली जो बात आती है, या कहीं के पीछे का नाम देता है हाइलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स. हेलो अल्केन्स. ओके. So somewhere it is given this what halogen derivative of alkanes. So see, if I'm going to discuss about the halogen derivative of alkanes, halogen derivatives of alkanes और अरीन्स. तो अगर अल्केन से अल्केन को होंगे, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स होगा तो उसको बोलेंगे हेलो अल्केन्स, और हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन होगा तो उसको बोलेंगे हेलो अरीन. ये होता क्या है? Just consider if I'm taking any alkane. Alkanes means what? Saturated hydrocarbon. Alkanes means saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon means compound in which all four valencies of carbon satisfied with single covalent bond with carbon or hydrogen. Hydrocarbon means only carbon and hydrogen present in molecule. In this case, its H will replace by X. So it forms compound like RH. But suppose if I'm taking one example like CH4, methane. So when methane release one hydrogen, replace one hydrogen by X, then it forms CH3X. One more hydrogen can replace by this X and it forms thus CH2X2. It can replace one more hydrogen and form CHX3. And one more hydrogen can replace by halogen and form the CX4. So on that basis, on the presence of number of halogen, this can we say that monohalogen derivative? It can be dihalogen derivative, tri, tetra, poly, etc. So first I am going to explain this monohalogen derivative, या इसी को बोलेंगे अल्काइल हैलाइड, या इसको बोलेंगे मोनोहैलो अल्केन्स. तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इस कंपाउंड को. मींस व्हाट? ओनली वन हाइलोजन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल. So now here I'm going to explain monohalogen derivative. या फिर इसी को हम बोलेंगे
mono haloalkane. Single halogen present in molecule, right? So when I'm going to classify this mono halogen derivative, so this mono halogen derivative can be further classified as alkyl halide, allylic halides, benzylic halides, aryl halide, and vinyl halide. This mono halogen derivatives in what? Single halogen present in molecule. Single halogen present, right? In this case, it can be further classified as first alkyl halides, or that is also called what? Haloalkanes. यहाँ पे मैंने बात की मोनो हेलोजन का, हेलोअल्केन्स. Alkyl halide या haloalkanes means what? It is represented by general formula CN H2N plus 1X. Right? And it can be primary, secondary, and tertiary. So in this case, first I'm going to explain this primary. Alkyl halides. In primary alkyl halides, as you know that halogen attached to the primary carbon. Very simple examples. CH3, sorry, that's CH2. And here I'm taking this Cl. Otherwise, here I'm taking this CH3, CH, CH3, CH2Br. Otherwise, here I'm taking CH3, C, CH3, CH3, CH2I. Here I'm taking CH3, CH, CH2, CH3. Here I'm taking CH3C, CH3, CH3Cl. Right? These are some examples. What are the difference in this example? So just consider here first one, it is primary, definitely it is primary. Primary in the sense when halogen attached to the carbon which carries one other carbon, that is primary. So we are observing here, this carbon is the primary carbon. Here this carbon is also primary carbon. This is also primary carbon. So all this is what? Primary. But here we can say that this is N propyl chloride. Here it can say that iso butyl bromide. Here can say that neo pentyl iodide. Just pay your attention about this. All these three are what? Normal. So when I'm using this prefix iso, neo, otherwise N, but these three prefix use only in case of what? Primary alkyl halide, not in secondary and tertiary. So what about the secondary and what about the tertiary? Which one is called secondary? Which one is called tertiary? So when halogen attached to the, you are observing here in this case halogen attached to the primary carbon, right? Here halogen attached to the primary carbon. But if I am taking this one,
सेकेंडरी, secondary alkyl halide means what? Halogen attached to the secondary carbon like CH3 CH CH3. अब जरा इस केस में देखो यहाँ पे क्या है, प्रोफाइल के केस में आइसो और सेकेंडरी दोनों सेम होता है, यही एक केस होता है जिसमें आइसो सेकेंडरी बोथ आर सेम. We write here only in case of iso, sorry, only in case of propyl, only in case of propyl iso and secondary both are same. Just note down करो इसको. ओके बेटा, सो ओनली इन केस ऑफ प्रोफाइल आइसो एंड सेकेंडरी बोथ आर सेम, तो यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं आइसो और सेकेंडरी दोनों नाम दे सकते हैं, कॉमन नेम. So we can write here iso as well as secondary. So we can say that isopropyl halide, otherwise sec propyl halide. देखो मैं नॉमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मैंने सब एक्सप्लेन किया नॉमेनक्लेचर का अलग से पार्ट इसके लिए, बट बेसिक चीजें जो है वो आपको आनी चाहिए. सपोज कोई नए स्टूडेंट होंगे या फिर जिसने नहीं देखा होगा नॉमेनक्लेचर का पार्ट, तो वो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, राइट. एंड दिस इज आल्सो रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम. हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेंगी. देखो तो ये हो गया, बट यहाँ पे अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, सपोज ये ले लिया मैंने CH3 CH CH2 एंड CH3, यहाँ पे मैंने Br ले लिया. सो ओनली इसको सेकेंडरी बोल सकते हैं, इसको आइसो नहीं बोल सकते. आइसो किस केस में सेम होता है सेकेंडरी से? ओनली इन केस ऑफ प्रोफाइल, ये बहुत ध्यान में रखना. सो इट्स नेम इज व्हाट? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आइसो नियो ये सिर्फ प्राइमरी के केस में यूज होता है, और मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड मींस व्हाट? प्राइमरी. बट यहाँ पे ये तो सेकेंडरी है क्योंकि हाइड्रोजन अटैच है सेकेंडरी कार्बन से, राइट. ये कार्बन दो अदर अलग कार्बन से अटैच है, टू डिफरेंट कार्बन से अटैच है, दैट्स व्हाट इज व्हाट? सेकेंडरी. तो यहाँ पे आइसो लिखा, मतलब प्रोफाइल के केस में आइसो और सेकेंडरी दोनों सेम होता है. इसके पीछे का भी लॉजिक है कि अगर मैं प्रोफाइल लिखने जाऊंगा, जैसे ये लिखा मैंने CH3 CH और CH3 ऐसा कुछ लिख दिया और यहाँ पे वैलेंसी दे दिया, तो हमेशा सेकेंड कार्बन पे क्या होता है? मिथाइल ग्रुप होता है, इसी को आइसो बोलते हैं. तो सिर्फ प्रोफाइल के केस में सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा. 1 2 मिथाइल ग्रुप, और एक कार्बन बढ़ गया तो वहां पे मिथाइल नहीं आएगा, इथाइल आएगा, तो उसको आइसो नहीं बोल सकते. इसलिए प्रोफाइल को ही आइसो बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए इसका नाम हम क्या देंगे? कॉमन नेम इज व्हाट? सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड. वी गिव द नेम सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड. अच्छा, IUPAC नेम इज व्हाट? नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये तो सिंपल बात है, सबको आएगा. दैट इज व्हाट? 2 ब्रोमो ब्यूटेन. 2 ब्रोमो ब्यूटेन. तो ये हो गया बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. किसकी बात हो गई? चलिए टर्शियरी, सॉरी एक एग्जांपल रह गया, यहाँ पे टर्शियरी ले लेते हैं पहले. टर्शियरी RX, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करेंगे 3 डिग्री RX, मतलब अल्काइल हैलाइड. इसका एग्जांपल देखते हैं और आप बताओ मुझे इसका नेमिंग नॉमेनक्लेचर क्या होगा, कॉमन एज वेल एज IUPAC.
एक्स मीन्स कोई भी ले लेंगे यहाँ पे, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पे। So its name is what? Common name tert butyl chloride. हाँ, tert means tertiary. Sometimes ये सिर्फ T लिखा रहता है, that is means tertiary. Yeah, IUPAC naming, longest chain selection, numbering, and give the preference to halogen and its name 2-chloro alphabetically 2-chloro 2-methyl propane. So simple, right? चलिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आफ्टर अल्काइल हैलाइड, आप नोट डाउन कर लो, चाहिए तो ये सारी चीजें। आई एम वेटिंग। जो भी नोट्स कर रहे होंगे, नोट बना रहे होंगे, नोट्स बना लो, लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। Have done? यस सर। ओके चलिए आगे देखिए यहाँ पे। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट जो होता है मोनो हाइलोजन में ही दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, नेक्स्ट वन अलाइलिक हैलाइड्स। मैंने बताया अलाइलिक ग्रुप क्या होता है उसके बारे में। तो नेक्स्ट वन इज व्हाट? अलाइलिक हैलाइड। सेकंड वन अलाइलिक हैलाइड। देखो अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, पहले अलाइलिक ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। अलाइलिक ग्रुप क्या होता है? सो व्हेन sp3 hybridized carbon attached to the sp2 hybridized carbon मींस, यहाँ पे हम सिंपल कह सकते हैं ये जो कार्बन है वो कैसा बेटा sp3 है, और ये जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा sp2 है। सो हाइलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अलाइलिक। तो ये पूरा ग्रुप, इस ग्रुप को मिला के बोलते हैं अलाइलिक ग्रुप। दिस इज कॉल्ड व्हाट? अलाइलिक ग्रुप, राइट। इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो हमें डबल बॉन्ड और हाइलोजन अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो हमें प्रेफरेंस किसको देना है नंबरिंग के साथ में? डबल बॉन्ड को। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ऑलवेज रिमेंबर दिस। हाँ 1 2 3। इसका आयुपैक नेम होगा बेटा यहाँ पे 3 हेलो, कोई भी यहाँ पे हो सकता है, 3 हेलो प्रोपीन। दिस इज द कंपाउंड। चलिए, और ये कैसा हो गया? ये कैसा हो गया बेटा यहाँ पे 1 डिग्री। Why it is 1 डिग्री? बिकॉज हाइलोजन अटैच टू द प्राइमरी कार्बन। अच्छा दूसरा देखते हैं एग्जांपल यहाँ पे, सेकंड 2 डिग्री का। इफ आई एम टेकिंग हियर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिया CHBr, और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3, क्या होगा इसका बताइए? देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2, मतलब ये पूरा ग्रुप कैसा हो गया? अलाइलिक ग्रुप हो गया। दिस इज व्हाट? अलाइलिक ग्रुप। तो ये वन टाइप ऑफ द अलाइलिक हो गया। बट इन दिस केस दिस कार्बन इज व्हाट? सेकेंडरी कार्बन। ये सेकेंडरी अलाइलिक हो गया बिकॉज हाइलोजन कंटेनिंग कार्बन इज व्हाट? सेकेंडरी कार्बन। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम लोग?
नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देके 1 2 3 4। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा? 3 ब्रोमो, और क्या हो गया यहाँ पे? ब्यूटवनीन या ब्यूटीन, डायरेक्टली वी कैन राइट दिस ब्यूटीन। चलिए, तो ये कैसा हो गया? अभी सेकेंडरी, दिस बिकम व्हाट? सेकेंडरी। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी 2 डिग्री। अच्छा 3 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं। 1 CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH2 CH3 CH3 Cl। क्या होगा इसका नाम? This is tertiary. Now this is tertiary. Reason behind that, this is allylic group. This is our allylic group. Just pay your attention about this. This is allylic group, and in this case, this is the halogen which attached to the carbon, and this carbon is what? Tertiary carbon. Right? This carbon is what? Tertiary carbon. तो नाम लिखो इसका, क्या होगा? Write the name of this compound. IUPAC name जल्दी लिखो। देखिए, we give numbering या give the preference to the double bond। 1 2 पे आ रहा है, यहाँ पे है 1 2 पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 3 पे आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। सो नेम इज व्हाट? P4 पे देखो मिथाइल और क्लोरो दोनों है, तो क्या नाम हो रहा है इसका? नेम इज व्हाट? 4 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। ये हो गया। गॉट इट? चलिए, तो ये कैसा हो गया बेटा? यहाँ पे दिस इज टर्शियरी। This is what? Tertiary, because this allylic group, this is allylic group, and here is what? Halogen attached to the tertiary carbon. So allylic halide is also 3 types: primary, secondary and tertiary. Got it? Primary, secondary and tertiary. This is what? Allylic group. चलिए आगे चलते हैं। Next one is what? After allylic we consider the benzylic halide. What is this benzylic halide? ये बेंजाइल ग्रुप होता है, बेंजीन। Here is what? CH2. This group is called what? Benzylic group. अब इससे अगर हैलोजन अटैच होगा तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। चलिए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। Here I'm taking this CH2 Cl. Here I'm taking this CH CH3 CH2, and here I'm taking okay. So now see, all these are what? Benzylic halides, but this is what? Primary. This one is what? Secondary, and this is what? Tertiary.
So as you are observing here, primary this is what 1 degree, secondary this is what 2 degree, and tertiary this is what 3 degree, right? Primary, secondary and tertiary. Now how to give the name of this compound? तो IUPAC नेमिंग करते हैं यहाँ पे इसका नाम होगा, देखो दिस ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट, फिनाइलिक ग्रुप। हाँ देखो C6H6 is what, benzene. So C6H5 is what, phenylic group. फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे इसका नाम दे देंगे, देखो इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा इसका बेटा, बेंजाइल क्लोराइड। कॉमन नेम इज व्हाट, बेंजाइल क्लोराइड। व्हाट विल बी द IUPAC नेम? इसका IUPAC नेम क्या होगा? बताओ जल्दी। क्लोरोफिनाइल मीथेन। हाँ, क्लोरो भी प्रेजेंट है यहाँ पे, फिनाइल भी प्रेजेंट है यहाँ पे, और एक कार्बन है, दैट्स व्हाट इज व्हाट, मीथेन। यहाँ पे इसका नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। यहाँ पे इसका नाम होगा 1 2 and 3 and its name is what, 2 bromo 2 phenyl propane। ये हो गया, राइट है। सो दिस इज व्हाट, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, एक और होगा विनाइलिक हैलाइड, फिर हम बात करेंगे अराइल हैलाइड की। तो विनाइलिक हैलाइड इज व्हाट, halogen directly attached to the carbon, double bond carbon like this। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे Cl अटैच हो गया, इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। ये मोनोमर है, पॉलीमर में यूज होता है। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, या फिर इसका नाम होगा क्लोरो इथीन, क्लोरोइथीन। गॉट इट। चलिए ये भी देखो, ये भी एक एग्जांपल है यहाँ पे विनाइल का। इफ आई एम टेकिंग हियर बीयर, देखो यहाँ पे बीयर लिया, ये कैसा हो गया, विनाइल हो गया। बट अगर यहाँ पे मैंने बीयर ले लिया, यहाँ पे बीयर ले लिया, देन बिकल व्हाट, अलाइलिक। तो ये अलाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया। समझ में आ रहा है आपको? दिस इज व्हाट विनाइलिक एंड दिस इज व्हाट अलाइलिक। गेटिंग माय पॉइंट? नाम क्या होगा इसका? यस, नाम क्या होगा इसका? इसको देंगे 1 ब्रोमो, ये तो लिखेंगे 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन। और यहाँ पे इसका नाम होगा बेटा, इसको प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग के लिए 1 2 3। यहाँ पे हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन, या साइक्लोहेक्सिन डायरेक्टली लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हो गया ना। So I hope understood this part. After that we consider some aryl halide. Huh? Aryl halides are what? You may note down this part. After that we go for aryl halide.
अब 10। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? अराइल हैलाइड। हाँ, और इसी को बोलते हैं हम लोग हैलो अरीन्स। हैलो अरीन्स। तो हैलो अरीन्स क्या है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं ऐसा। यहाँ पे अगर कोई भी हैलोजन अटैच हो गया, इसको बोलते हैं हैलो अरीन्स। ये डेफिनेटली क्लोरोबेंजीन, राइट? या इसको हम लोग फिनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, राइट? यहाँ पे देखिए कुछ और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने CH3Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोटोल्विन। पता है ना, बेंजीन पे जब CH3 होता है उसको टोल्विन बोलते हैं, राइट? या इसको ऑर्थोक्लोरोटोल्विन भी बोल सकते हैं। वी कैन से दैट ऑर्थोक्लोरोटोल्विन। हाँ, वी कैन गिव द नेम ऑर्थोक्लोरोटोल्विन। ओके, सी हियर। यहाँ पे सपोज ऐसा हो गया CH3 Br, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमोटोल्विन। या फिर इसको बोलेंगे M ब्रोमोटोल्विन, मेटा ब्रोमोटोल्विन। ये कुछ इसके नाम हो गए, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जरा इसका नेमिंग बताओ क्या होगा IUPAC नेमिंग। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर प्रिपरेशन, राइट? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, पहले अल्कीन से फिर अल्केन से कैसे होता है। कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज पूरा करेंगे। तो पहले कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ, जरा इसका ट्राई करो आप लोग। ओके, ऑल ऑफ यू यूज योर नोटबुक पेन एंड आई एम गिविंग सम क्वेश्चन, some compound, you have to write the IUPAC name of this compound। हाँ, जैसे क्वेश्चन है पे मैं पूछ रहा हूँ, गिव IUPAC नेम, गिव IUPAC नेम। चलिए ट्राई करते बेटा, यहाँ पे क्या होगा IUPAC नेम। जैसे पहला कंपाउंड है प्लस, आपको आइडेंटिफाई भी करना है ये कौन सा हाइलाइट्स है। अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, अल्काइल एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सारी चीजें। ये पहला कंपाउंड हो गया। चलो सेकेंड, सेकेंड वन। थर्ड लेते हैं यहाँ पे, फोर्थ वन, फिफ्थ वन,
चलिए इतने को ट्राई करते हैं आप लोग। ओके, एक और दे देता हूँ मैं। चलिए बोलिए, ट्राई कीजिए इसका फटाफट। ट्राई किया आपने? अब डन। चलो वन बाय वन ट्राई करते हैं। फर्स्ट इसका नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अब देखो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 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 और कार्बन, टोटल 4 कार्बन है। हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबरिंग। सो ट्रिपल एंड डबल बॉन्ड में वी गिव प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसको लिखेंगे पहला 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5, तो पेंट। ठीक है। इन और आइन, कहां पे इन है? 1 पे, और कहां पे आइन है? 4 पे। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, हाउ टू गिव द नेमिंग? यस। चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं बेटा इसका। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? देखिए अगेन, इन दिस केस फ्रॉम विच साइड वी स्टार्ट द नंबरिंग? ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे नंबरिंग जो होगा वो कहां से होगा, जरा बताओ मुझे तो फटक से। तब ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। तो आवर नेमिंग इज व्हाट? 4 क्लोरो।
पेंट टू आइन। यहाँ पे बेटा नाम क्या होगा इसका? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा बताओ मुझे फटक से। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, फिर भी आप ट्राई करो, बताओ मुझे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेंगे यहाँ पे। कौन सा होगा लॉन्गेस्ट चेन? देखो, फर्स्ट वी टेक दिस लॉन्गेस्ट चेन। वन, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे सब कार्बन है, देख लो। तो वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है। इस साइड से अगर हम जा रहे हैं 1 2 3 पे आ रहा है बेटा, यहाँ पे 1 2 पे आ रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। ये अपना लॉन्गेस्ट चेन हो गया, मैं सेलेक्ट करके देता हूँ आपको। वी गिव नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? CH3। यहाँ पे भी क्या है? CH3। यहाँ पे भी क्या है? CH3। दीज आर एज अ ब्रांच, CH3 CH3 CH3, और ये ब्रोमो है। तो अब इसका नेमिंग करते हैं परफेक्टली। पहले ये सिलेक्शन हो गया, नेमरिंग हो गया, फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर आराम से अल्फाबेटिकली इसको अरेंज कर देंगे। तो फर्स्ट वी राइट द ब्रोमो, 4 ब्रोमो। नाउ मिथाइल प्रेजेंटेड व्हाट? 2 3 and 4. We write here 2 3 4. Trimethyl pent 2-ene. Is it right? Is it right? Yes. क्या हुआ ध्यानेश, कहाँ चले गए थे? सर नेटवर्क इशू है। ओके ओके ओके, चलो ट्राई करो इसका नेमिंग। So again we select the continuous longest chain. Which one is the longest chain here? देखो यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है, तो डेफिनेटली दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। ये हो जाएगा। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड। यहाँ पे 1 2 3 अगेन 1 2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे ये बाकी है, HH है और ये ब्रोमो है, तो वी गिव द नेम 4 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हो गए? 5। पेंट 2-ene। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3, और ये क्या है? फिनाइल। ये क्या है? क्लोरो। बस अटैच कर दो, अरेंज कर लो इसको। क्या नाम होगा इसका? 1 क्लोरो, सॉरी 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 सॉरी, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपीन। यहाँ पे बेटा क्या नाम होगा इसका? चलो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यही होगा। So its name is what? 3 bromo butene. Sorry, 2 chloro also, na? Sorry, 2 methyl. Here is methyl group.
2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटीन। हाँ, ये हो गया। नहीं तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई फटाफट। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रिपरेशन, राइट, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। So our next topic is what? Preparation of alkyl halide. चलिए इसमें कुछ बहुत टेंशन की बात नहीं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा अभी आपको, ठीक है, तो उसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रिपरेशन की बात करते हैं अभी, यहां से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। देखिए मैंने क्लासिफिकेशन में डाई ट्राई टेट्रा का उस सब का मैंने नहीं बताया था, डाई हेलोजन और ट्राई हेलोजन, तो जब ये आएगा चीजें तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रिपेयर करने जाते हैं अल्काइल हैलाइड को एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, राइट। इन शॉर्ट वी कैन से दैट दिस इज व्हाट फ्रॉम अल्कीन, हम लोग इसी मेथड को बोल सकते हैं फ्रॉम अल्कीन, राइट। अल्कीन से बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। तो पहला है फ्रॉम अल्कीन, यस, फ्रॉम अल्कीन्स। इसी में हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन। अगर मैंने HX को ऐड कर दिया तो ये मतलब वन काइंड ऑफ द एडिशन रिएक्शन हियर। So see this example, if I am taking here alkene like CH2 double bond CH2 या any alkene carbon double bond carbon, in this case we know that sigma and pi bond present. When it is treated with HX, so this pi bond will break here, and at one carbon halogen and another carbon hydrogen will attach. ये था यहाँ पे, ये हो गया, ये था यहाँ पे और ये हो गया। Due to the breaking of this pi bond, 1-1 valency create here, और 1 पे हाइड्रोजन अटैच हो गया बेटा और सेकंड पे X अटैच हो गया, दिस बिकम व्हाट? अल्काइल। ये मिल गया अपने को HX के एडिशन से अल्काइल हैलाइड। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? अल्कीन, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? अल्काइल हैलाइड। अब ये जो अल्कीन है ना, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। When I'm going to write this alkenes, this is 2 types, symmetrical and unsymmetrical। बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, समझना है। Symmetrical alkenes and here is what? Unsymmetrical alkenes। Symmetrical alkenes is what? When we divide this alkene from carbon double bond carbon, it break down into the 2 equal parts,
For example, if I'm taking this CH2 double bond CH2, this is symmetrical alkene. This is symmetrical alkene. When I'm considering here CH3CH, CH and CH3, this is also symmetrical alkene. You are getting my point. You are observing this. This is what symmetrical alkenes. If I'm taking here this is also symmetrical. So these are the symmetrical alkenes. The reason behind that, when we break this alkene from carbon, double bond carbon, it divided into equally part. Symmetrical alkenes. But what about unsymmetrical alkenes? Suppose here I'm taking this CH3, CH double bond CH2. Here I'm taking like this CH3C, CH3, CH3, CH2. These are unsymmetrical alkenes. These are unsymmetrical alkenes. When we divide this alkene from double bond, it will not divide into equal part. That's why this is unsymmetrical alkenes. Why I'm explaining this alkenes, types of alkenes? Suppose when HX, it can be HX, HBr, HCl, HI. When I'm taking HX, and when this HX will add here, what product will get here? Only one kind of product will get. We can attach this H here and we can attach this X here. Otherwise, when we attach H here and X here, in both condition our product will be same. In this case, we start numbering from this side. In other case, we can start numbering from that side. Same here. You can attach this. I'm taking this 1, 2, 3, 4. Suppose if I'm going to add this HX and here I'm getting this two product. ध्यान से देखना यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे मैंने H attach कर दिया, it become what CH2, यहाँ पे मैंने X attach कर दिया, it become what X. In second condition we can say that like this one, CH3 CH X. But when I'm going to give the name of this compound, we start numbering from here 1, 2, 3, 4, and in this case we start numbering from here 1, 2, 3, 4. So we are observing in both cases we are getting the same product. So my intention to give this example is that only when I'm going to add this HX to the symmetrical alkene, we get only one kind of product. Right? We get only one kind of product. Suppose here is the X. यहाँ पे H attach हो जाएगा, यहाँ पे C. This is the product. So we are observing here when symmetrical alkene treated with HX, we get only one kind of product. But in case of unsymmetrical alkene, now pay attention about this. In case of unsymmetrical alkene, when I'm going to add this HX, like this HBr, suppose I'm going to add here, so we'll not get the same product. Here we get this two product. What kind of product we'll get here? In first case, H will attach here and Br will attach here.
या अपोजिट, सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने CH, H अटैच कर दिया यहाँ पे और CH2 अटैच कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिया तो यहाँ पे हो गया बेटा CH3 CH, यहाँ पे H अटैच किया और यहाँ पे Br अटैच किया. Now both product is different, both product is different. Both product is different. In this case, we start numbering from here 1, 2, 3, and its name is what? 1 bromo propane. And in this case, we start numbering from here 1, 2, 3, and we give the name like 2 bromo propane. And 2 bromo propane is major product. This is important part. Major product. Why it is major product? As per Marconi-Cox rule. So now question arises that what is the Marconi-Cox rule? This is major product, and why it is major product? As per Marconi-Cox rule. And what is this Marconi-Cox rule? What is the rule? So according to this rule, when unsymmetrical alkene treated with unsymmetrical reagent, then negative part of reagent attached to that carbon which carries less number of hydrogen. This is the rule, this is the statement. I will explain with mechanism also. So according to Marconi-Cox rule, we know that in case of HBr, this is partially negative, this is partially positive. And we are going to add this HBr to unsymmetrical alkene, propene. So addition will take place between the carbon, double bond carbon, and we are observing here in this carbon, double bond carbon, here is the 2 hydrogen, here is the 1 hydrogen. This carbon having 1 hydrogen and this carbon having 2 hydrogen. So as per this statement, negative part will attach to that carbon which carries the less number of hydrogen. So that's why this is the major product as per Marconi-Cox rule. According to the Marconi-Cox rule, right? In this case, now here is the important part. Here is the twist and important part. चलो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे देखते हैं बेटा. Now if this will react with the HX, या HBr ले लिया मैंने, what product will get here? What is the major product? So our major product is what? As per Marconi-Cox rule, this Br should be attached here, H will attach here, and we get this product. But actual our product is what? CH3 Br and CH3. अब ये समस्या हो गई, ये कैसे आया? How will get this one?
प्रोडक्ट चेंज हो गया। अभी एज पर मार्कोनी ऑफ रूल वी कैन से दैट, एज पर मार्कोनी ऑफ रूल वी कैन से दैट दिस इज व्हाट माइनस, दिस इज व्हाट प्लस, एंड यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो हर समय रूल से ही नहीं जाने का आपको, इस केस में आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। अगर मैकेनिज्म आएगा देन यू कैन गिव द प्रॉपर आंसर, अदरवाइज यू विल बी फेल। वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, जो मैंने दिया था अभी, लाइक दिस। If I am taking this compound and here I am taking this HBr, as per Markovnikov rule, whenever I am writing this M rule, मतलब what Markovnikov rule. So double bond यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे कहाँ पे अटैच होगा Br, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, सुनो ना, देखो समझो आप, यहाँ पे कार्बन है बेटा, यहाँ पे या क्या है, ये CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। इस कार्बन की वैलेंसी देखेंगे तो 1 2 3 पूरा है, मतलब एक हाइड्रोजन इसके पास। यहाँ पे कितना है, नहीं सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, आई एम सो सॉरी। 1 2 3 4 पूरा हो गया। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो गया बेटा। यहाँ पे सब जगह पे दो दो हाइड्रोजन है, बट हमें उससे मतलब भी नहीं है, उसको लेना भी नहीं है, हमारा एडिशन तो यहीं पे। अब यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मतलब Br कहाँ पे अटैच होगा, माइनस पर, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। सो यस, आवर प्रोडक्ट विल बी व्हाट, ये Br, ये मिल गया प्रोडक्ट। सो दिस इज द Markovnikov rule. So what is the mechanism? You should know the mechanism. Then I will explain this example. I'm giving the number 1, 2 and 3. चलिए पहला 1 का मैकेनिज्म बताता हूँ, फिर उसी मैकेनिज्म से 2 को एक्सप्लेन करता हूँ। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई बेटा? All of you getting this thing? Yes. Abdul, Abhinav, Lavrin, Shreel. What about you? Shreel, answer me. Shreel. देखो लेक्चर ऑन करके चला गया कहीं, ऐसा नहीं चलता बेटा। देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट वन सुनो, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए बेटा यहाँ पे देखिए, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म पार्ट। हाँ, मैकेनिज्म ऑफ Markovnikov रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज व्हाट मैकेनिज्म ऑफ Markovnikov रूल। यहाँ पे मैकेनिज्म, या मैं डायरेक्टली बताता हूँ मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HX। हाँ, HX टू अल्कीन। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसा है मैकेनिज्म, क्या है। तो सी सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, प्रोपीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ध्यान से समझना यहाँ पे, CH2 यहाँ पे ऐड हो रहा है HX। चलिए HBr ले लिया, it will be unsymmetrically break because it is negative, it is what positive. So this H plus will attack here. तो ये इसको अप्रोच करेगा और H प्लस एज ए H प्लस यहाँ पे अटैच होगा कहीं पे,
और फॉर्म करेगा कार्बोकैटायन। दिस इज द आरडीएस। यहां पे अटैच हो गया बेटा CH3। चलो यहां पे अटैच करता हूं मैं, CH2H प्लस मिल गया। या एक और प्रोडक्ट मिल सकता है यहां पे, यहां पे H अटैच हुआ और यहां पे मिल गया CH2 प्लस। तो कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे मुझे रीअरेंजमेंट देखना पड़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट इंटरमीडिएट। सो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन and this is primary carbocation, and secondary carbocation is more stable। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे 3 and 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इट गिव द मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट्स व्हाट इज मोर स्टेबल। तो जब ये मोर स्टेबल हो गया तो डेफिनेटली सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, फास्ट अटैक होगा वहां पे। अच्छा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट के अगर चांसेस है तो वहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता है। So in second step we get this what, more stable carbocation get attacked by nucleophile, और न्यूक्लियोफाइल क्या है अपना Br माइनस, यहां से मिला है अपने को, it will attack here। So what will be the product, our product will be what, CH3 CH Br। I hope you understood this part। क्या सबको समझ में आया बेटा? ये मैकेनिज्म समझ में आया? मैंने बताया मैकेनिज्म अच्छे से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब बताया आपको, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत सारे एग्जांपल ये भी हुए हैं वहां पे, मार्कोनी का प्रूफ भी एक्सप्लेन किया मैंने, जस्ट थोड़ा सा रिवाइज किया आपको। चलिए, तो हम अभी अपना अगला एग्जांपल लेके चलते हैं जहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन था। वैसे जो रेगुलर है उनको तो कंफ्यूजन नहीं होगा, मैकेनिज्म में आपने समझ लिया होगा यहाँ पे मैंने क्या बताया, बट अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एग्जांपल। हाँ, हाउ विल गेट दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे अपना रिएक्टेंट था, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस सेकंड एग्जांपल विथ मैकेनिज्म। आई एम having this CH3 CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या यहाँ पे पहला प्रोटोनेशन होगा? यस होगा, जरूर होगा। प्लस, तो पहला प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे बेटा। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? CH3C, मैं स्टेबल कार्बोकैटायन पहला ही ले ले रहा हूं मैं, सेकेंडरी बना रहा हूं मैं यहाँ पे CH, हियर इज व्हाट CH3, H यहाँ पे अटैच कर दिया और यहाँ पे प्लस आ गया। तो क्या ये स्टेबल कार्बोकैटायन है? हाँ, सेकेंडरी है, ठीक है। और मैंने बताया कि जहां पे भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज हमें देखनी ही पड़ेगी। सो इट गो फॉर द रीअरेंजमेंट। और यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, 1-2 शिफ्टिंग होगी, किसकी होगी? मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी। यहाँ पे मिथाइल है, वी कैन राइट 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग। हाँ, तो जब रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग होगी, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। टर्शियरी, सेकेंडरी कन्वर्ट हो जाएगा टर्शियरी में। देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, अब यहाँ पे CH के पास क्या आ गया? CH3, यहाँ पे CH3 था ऑलरेडी और यहाँ पे प्लस आ गया। नाउ दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। मोर स्टेबल, तो डेफिनेटली अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे सेकंड स्टेप पे, Br माइनस, यहाँ पे अटैक किया,
तो क्या प्रोडक्ट मिला यहाँ पे, वी गेट दिस CH3 बियर। ये मिल गया। तो देखा आपने, प्रोडक्ट तो हमारा वही मिला था। ज्यादा छोटा हो गया, मैं दिखाता हूँ आपको, यही प्रोडक्ट मिला ना आपको। अंडरस्टूड इस पार्ट। सो जहां पे भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वहां पे आपको रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। ये ध्यान में रखो, बस आपका काम हो जाएगा। जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट, देन वी गो फॉर द परऑक्साइड इफेक्ट। इसी का एक अपोजिट परऑक्साइड इफेक्ट, उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहीं कहीं। नोट डाउन करो फटक से। हो गया बेटा? Yes, sir. हो गया बेटा आपका? मैं आगे चलूं? यस, चलिए। अब जरा देखो परऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है। परऑक्साइड इफेक्ट, हाँ, या इसी को हम कहते हैं खरास रूल। ठीक है, क्या है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या परऑक्साइड इफेक्ट? देखते हैं। सेम रिएक्शन अगर परऑक्साइड में हो रहा है, प्रोपीन treated with HBr in presence of peroxide, peroxide, ठीक है। तो इस केस में क्या ले रहे हैं हम लोग पेरोक्साइड में? अब निगेटिव पार्ट वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, अपोजिट हो गया, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। तो वी गेट दिस CH3 CH, यहां पे H आ गया और यहां पे Br आ गया। वन ब्रोमोप्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट, राइट है। इसका मैकेनिज्म क्या है
ये क्या होता है, क्यों होता है? तो पेरोक्साइड के प्रेजेंटेशन में अब ये फ्री रेडिकल हो जाता है सब्स्टिट्यूट एडिशन। वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पे कैसा होगा, फ्री रेडिकल एडिशन हो गया, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। देखो कैसा होता है यहाँ पे मैकेनिज्म, देखो यहाँ पे मैंने ये सब बताया आपको, बस थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। देखो फटाफट, व्हाट इज मैकेनिज्म पार्ट। तो देखो यहाँ पे, अब अगर मैंने पेरोक्साइड लिया और यहाँ पे HBr लिया, तो पहले पेरोक्साइड लिया, सपोज ऐसा कुछ ले लिया, जब बनता है फ्री रेडिकल, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल यहाँ पे कैसा बनेगा, अल्कोहल, और Br फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, समझो जरा इसको। हाँ? अच्छा, अब Br फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा, Br फ्री रेडिकल। तो पहले स्टेप में Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा एंड गिव द टू प्रोडक्ट्स। क्या प्रोडक्ट के चांसेस है यहाँ पे, इफ CH3CH, देखो सपोज कि Br यहाँ पे अटैच हो गया, तो हियर इज द फ्री रेडिकल, एंड सेकंड केस, if Br attached here, then here is the free radical. So again, this is the primary and secondary. This is the secondary free radical, and this is primary free radical, and definitely it is more stable. More stable. तो जब ये more stable होगा, तब इसके ऊपर अटैक करेगा दूसरा ग्रुप। So now this CH ऐसा कुछ ब्रेक होने जा रहा है होमोलिटिकली, और ये यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक हो जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 Br, 1 ब्रोमो प्रोपेन। वेरी सिंपल। So peroxide effect only in case of what, HBr. Only in case of HBr, not in HCl and HI। यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे होगा, राइट। और उसका लॉजिक मैंने बताया था, कैसे एनर्जी होता है, कैसे ये देखो, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है होमोलिटिकली, और यहाँ पे ब्रेक होता है तो आई फ्री रेडिकल मिलकर के I2 बना लेता है, दैट विल मोर रिएक्टिव। ठीक है, वो एक रीजन होता है। तो ये एक कंडीशन हो गया। सपोज अब यहाँ पे अगर एग्जांपल दे दिया मैंने, सेम जो मैंने अभी ऊपर लिया था एक एग्जांपल, लाइक दिस वन, ऐसा कुछ लिया और यहाँ पे HBr का रिएक्शन करा दिया, बट नाउ इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, UV लाइट, हीट और H2O2 पेरोक्साइड। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अब वहां पे Br अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो अभी प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ये मिलेगा, Br। क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक बात कर लेते हैं हम लोग इसकी, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की। किसकी? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। जरा देखो यहाँ पे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखो यहाँ पे, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे, तो मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे नोट पहला। व्हेन
alkenes are heated with Cl2 or Br2 at the high temperature of about 773, writing properly, 773 Kelvin. So the hydrogen atom of allylic कार्बन, और allylic कार्बन आपको पता है क्या, कौन सा कार्बन, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है, मींस यू कैन राइट हियर दैट इज carbon atom next to the double bonds is substituted with halogen atom without breaking the double bond. ठीक है, and form allyl halides. बहुत इंपॉर्टेंट है, allyl halide. देखिए कैसे होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, मैं ये पीडीएफ भेजने वाला, इसके लिए बहुत ज्यादा आप अगर नोट्स नहीं बना पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भेजता हूँ अभी. हम आई विल सेव इट एंड सेंड टू यू. चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट. जैसे if I am taking CH3 CH double bond CH2 और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ Cl2. अब HX की नहीं ले रहा हूँ बात में, क्या ले रहा हूँ, Cl2. बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे. प्रोपीन, टेम्परेचर इज व्हाट, 773 केल्विन. अब यहाँ पे Cl यहाँ पे आएगा, H को रिप्लेस करेगा, देन बिकम व्हाट, CH2 and definitely it is what, allylic. This is allylic group. Got it? Allyl chloride. Otherwise we can say that 1 2 3 chloropropene. राइट है. एनबीएस के प्रेजेंटेशन में भी अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और मैंने ये मैकेनिज्म में आपको बताया था. जरा देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल एनबीएस के. एनबीएस इज व्हाट, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड. मैंने बताया था रिएजेंट, ध्यान से देखो यहाँ पे रिएक्शन आपको याद आएगा शायद, अगर रिवाइज किया होगा तो. इसके लिए बोल रहा हूँ, जब ये चैप्टर चल रहे हैं ना, तो आप अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म रिवाइज करके आओ. मैं ट्राई करूंगा हर एक का मैकेनिज्म फिर से बताने का, बट फिर भी आप एक बार अगर स्टडी किए रहोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए.
ये देखो ये मिला अपने को एन बी आर, इसी को कहते हैं एन ब्रोमो, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। जस्ट सक्सिनामाइड, और इसी को बोलते हैं एन बी एस। तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे हीट करने पे? बी आर यहाँ पे अटैच होगा बेटा, और सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू हो जाएगा एज इट इज, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिस इज व्हाट 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन। राइट, और क्या निकला यहां से? CONH हो जाएगा ये, हाँ ये निकल गया सक्सिनामाइड। ये हो गया रिएक्शन। डायरेक्टली आपको कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे ऐसा, बहुत ध्यान से देखो, ये थर्ड एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया बेटा, और यहाँ पे लिख दिया NBS, NBS। H म्यू और H2O2। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है आपने को? एनबीएस के प्रेजेंटेशन में हो रहा है, तो जहां पे भी एनबीएस आ जाएगा वहां पे क्या होगा? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा। तो डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं गिरने वाला है, वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा बीआर, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ये प्रोडक्ट हो गया आपका, राइट। एक और यहाँ पे रिएजेंट ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये प्रोपीन, इट इज ट्रीटेड विद द SO2Cl2, 473 Kelvin UV light. So now our product is what? ClCH2, double bond CH2. That become what? 3-chloropropene. 3-chloropropene. Yes. This is what? 3-chloropropene. Got it? क्या ये समझ में आई चीजें आपको? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आया? Yes, ये भी अल्कीन है, बट यहाँ पे अगर Cl2 ऐड हो रहा है इसके प्रेजेंटेशन में ये रिएजेंट, तो यहाँ पे क्या देगा? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया आपका रिएक्शन फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कीन्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट? फ्रॉम अल्केन। अल्केन से कैसे मिलेगा? हाउ विल गेट द प्रोडक्ट फ्रॉम अल्केन्स? वहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं वो जरा देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओके बेटा, देखो यहाँ पे फ्रॉम अल्केन, इसके बाद अल्कोहल की बात करेंगे। फ्रॉम अल्केन,
देखते हैं अल्केन से कैसे बनाते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन क्या होगा? डायरेक्ट हैलोजिनेशन देखते हैं। देखिए अच्छा, इसमें रिएक्टिविटी जरा देख लेते हैं। टर्शियरी अल्केन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्केन। सेकेंडरी विल बी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्केन। हाँ, राइट। रिएक्शन कैसा होगा? सिंपल, अल्केन लिया मैंने, यहाँ पे हमने लिख दिया X2 और किसके प्रेजेंटेशन में होगा? यूवी लाइट। हर एक के लिए कंडीशन कभी कभी अलग होगा, क्लोरीनेशन के लिए अलग, ब्रोमिनेशन के लिए अलग, आयोडीनेशन के लिए कुछ अलग कंडीशन होंगे। देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने एच म्यू, तो आवर प्रोडक्ट इज व्हाट? आर एक्स प्लस एच एक्स, राइट। तो ये मेथड जो होता है वो फ्री रेडिकल, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। नोट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट नोट, डायरेक्ट हैलोजिनेशन proceeds through free radical mechanism, राइट। ये अब तो पता है। यहाँ पे अगर मैंने लिखा CH4 और अगर ये रिएक्ट कर रहा है Cl2 से, आपने बहुत पहले से पढ़ा है, आपने 11th में पढ़ा है, यूवी लाइट पे प्रेजेंटेशन में माइनस HCl निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आएगा? CH3Cl आ जाएगा, राइट ना। ये कंटिन्यूस होता रहेगा, फिर से Cl2 रहेगा, माइनस HCl निकलेगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे? CH2Cl2 आएगा, फिर से ये होगा रिएक्शन Cl2 minus HX HCl, it will give what? CHCl3, कंटिन्यूअस रिएक्शन होगा। Cl2 minus HCl will get what? CCl4, राइट। तो इसके लिए ये मेथड जो होता है वो परफेक्ट मेथड नहीं है, लेबोरेटरी मेथड नहीं है। हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन। देखो यहाँ पे मैंने अगर हाइलोजिनेशन कराया और कंट्रोल नहीं किया इसका अमाउंट, ये मिक्सचर देगा पूरा, और इस मिक्सचर को सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? दिस मेथड is not used laboratory because it is not okay, because it is not easy to separate the individual members individual members
from the mixture. ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पे है इफ कंडीशंस आर वेल मेंटेन, हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, इफ द कंडीशन आर वेल मेंटेन स्पेशली, मैंने जैसे बताया आपको क्या, द रेशियो हाइड्रोजन एंड अल्केन, हाइड्रोजन एंड अल्केन, ठीक है। ठीक है, तो ये मेथड हम लोग यूज करते हैं किसमें, कमर्शियल मेथड, राइट ना। देन it is important most important कमर्शियल मेथड, समझ में आ गया ना। इसमें जो रिएक्टिविटी होती है वो कैसी होगी, यहाँ पे रिएक्टिविटी इज व्हाट, अलाइलिक सेकेंडरी ये देखो टर्शियरी is more reactive than secondary, secondary is more reactive than primary, primary is more reactive than methane, ऐसा, ठीक है। अब जरा एक रिएक्शन देखो, आपको चीजें समझ में आएंगी मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। सिंपल से यहाँ पे है, इफ आई एम टेकिंग दिस C2H6 और यहाँ पे ये मैंने एक्सेस लिया बेटा, यहाँ पे यही रेशियो मेंटेन करने की बात कर रहा था, ये एक्सेस ले लिया और यहाँ पे Cl2 ले लिया लिमिटेड, और इसकी रिएक्शन करा दिया मैंने लाइट के प्रेजेंटेशन में, यूवी लाइट। तो अब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, C2H5Cl मिल रहा है हमें, HCl निकल गया, ये मिल गया हमें प्रोडक्ट, राइट ना, इथाइल क्लोराइड एज ए मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, राइट। समझ में आया क्या। अगर मैंने प्रोपाइल ले लिया, यहाँ पे समझो ये ले लिया मैंने CH3 CH2 CH3, यहाँ पे हमने क्लोरीनेशन करा दिया यूवी लाइट के प्रेजेंटेशन में, HMU, दो प्रोडक्ट मिलने वाला अपने को, CH3CH CH3Cl प्लस Cl, तो यहाँ पे होगा 2 क्लोरो और यहाँ पे होगा 1 क्लोरो प्रोपेन। यहाँ पे कैसा होगा, ये 55% है सेलेक्टिविटी और मिलेक्टिविटी, मैंने बताया था आपको 55%, तो ये होगा 45%, राइट है। ये आपको समझ में आया क्या, बिकॉज क्लोरीन इज नॉट मोर सिलेक्टिव, ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव नहीं होता, ब्रोमीन बहुत सिलेक्टिव होता है, राइट, ये रिएक्टिव होगा, इसके लिए यहाँ पे ये दोनों के चांसेस यहाँ पे हो गए। एक लास्ट में बता देता हूँ, आयोडीनेशन, आपको पता है बेटा आयोडीनेशन में क्या होता है। अगर मैं सपोज आयोडीनेशन कराने जा रहा हूं, अल्केन लिया, I2 लिया, RI और HI बन गया। HI जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हाँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये इमीडिएट रिड्यूस करके रिवर्स रिएक्शन दे देगा, ये वी गेट दिस रिवर्स रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे कैसा, ये इसकी रिएक्टिविटी देखो, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कैसी होती है,
सुनो मेरी बात सुनो। तो ये रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल, इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, रिवर्सिबल रिएक्शन कब नहीं होगा? सो इन प्रेजेंस ऑफ सॉरी बेटा, हाँ, सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल। जैसे अगर मैंने ले लिया अल्केन और यहाँ पे ले लिया I2, बट नाउ इन प्रेजेंस ऑफ HiO3 आयोडिक एसिड, यहाँ पे अब इरिवर्सिबल होगा और बनेगा अपना प्रोडक्ट Ri। नाउ वी गेट द प्रोडक्ट, ये मिल गया प्रोडक्ट। सो इन दिस केस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंटेशन में हमारा रिएक्शन हो सकता है, राइट ना? अब यहाँ पे हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं। दीज आर द मेन प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन क्या है? मींस फ्लोरीन विल बी मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन विल बी मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन विल बी मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया इसका, समझ में आया? ये समझ में आ गया बेटा? अच्छा, अगर कोई अल्केन 4 कार्बन से ज्यादा है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, देखो यहाँ पे, इफ C4 and above alkane undergo for chlorination, give a mixture of क्या देगा मिक्सचर? D and L, ऑप्टिकल आइसोमर, हाँ ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। लो प्लस यूवी लाइट, दो प्रोडक्ट मिलने वाले, देखो यहाँ पे Cl CH3S C2H5 2 क्लोरोब्यूटेन, और क्या मिलेगा इसके साथ? ये, तो इफ इट इज D देन दिस इज व्हाट L, और इसी को हम कहते हैं क्या? रेसमिक मिक्सचर, राइट। ये मिल गया रेसमिक मिक्सचर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो मैंने दो मेथड आपको बता दिया, अल्कीन से और अल्केन से, राइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट? अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, हाउ टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, एंड हैलोजन एक्सचेंज। तो दो और मेथड है, फिर ये प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ओके, तो चलिए आज इतना ही रुकते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।